ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਖਾਰੀ 12 ਮਾਦ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ ਮਨੀਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਰਕਤ ਬਿੰਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਭੋਜਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਢੇ 3 ਮਣ ਦੇ ਹੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਕੰਡੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਛੋੜ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਔਰੰਡ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੀਏ। ਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ,
ਜੋ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। तो फिर पढ़िया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, सुनिया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि मन मनदा नहीं। धर्म की पहली साधना सुनन ते खड़ी है। सुनिए मनिए मन कीता। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहने श्रुत्वा धर्मं विजानाति, सरवण करने से ही धर्म की प्राप्ति है। इंज कहते हैं सुनना मोह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं इस दे उत्ते 4 पौड़ियां उचारण करनियां पईआं। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ। किसी ने सुनिया, सुनिया होया मन लिया, सिद्ध बन गया, नाथ बन गया। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ। कोई पीर बन गया, कोई संत बन गया। सुनन दी इतनी वड्डी महिमा एक पौड़ी नहीं 4, और हर पौड़ी विच नवे तो नवे रूप दिते ने। सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मोक्ष सलाहन मन। सुन सुन के कोई ब्रह्मे जैसा विद्वान बनया है, सुन सुन के ही कोई सतो गुणी विष्णु बनया है, सुन सुन के ही कोई भोला शंकर बनया है, शिव जी बने। सारी ये उच्च पदवियां धर्म दियां सुनन ते खड़ियां। सुनिए सत संतोख ज्ञान। किसी ने सुनिया मन लिया, वही सत बनया, उच्चा चरण बन गया, वही संतोख बन गया, वही सबर बन गया। उस सुनन ने इतना पवित्र कर दिता है कि 68 तीरथ इस तो कुर्बान किए जा सकते, सदके किए जा सकते। फिर चौथी च कहते हैं सुनिए सारा गुनाह कहेगा, सुनिए शेख पीर बादशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुने हाथ होवे असगाव। ये न तरे जान वाला सागर, जिन्हों अबूर करना बड़ा औखा है, एक हाथ जैसा रह जाता है सुनन नाल, मनुख अबूर कर देता है, पार हो जाता है, बहुत सागर तो पार हो जाता है। सारे पाप मिट जाते ने, सारे दुख मिट जाते ने, सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। केड़ा सुनिया होया? जिन्हों मन ले। मैं हुण फिर दोहरावां ते अगे चला। जो भोजन असी छकदे हां, उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, उही शरीर दा हिस्सा बनदा है। खून बन के, मांस बन के, चर्बी बन के, हड्डियां बन के, इंद्रियां दी शक्ति बन के। शरीर दा विकास, शरीर दी होंद भोजन दी होंद है, भोजन दा विकास है। जो असी सुनदे हां, पढ़दे हां, मन मन लैंदा है जिसनूं, उही साडे मन दा हिस्सा बनदा है, उही साडे मन दा रूप बनता है। सुनिया होया अगर मनिया है तो ये सिद्ध हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो संतोखी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो ये ज्ञानी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो ये सारे दुख ते पाप नाश हो जाएगा।
और सਦੀवी आनंद की प्राप्ति हो जाए। सुनने वास्ते कबूल करना पएगा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता और मैं सुनना चाहता, जानना चाहता। इस वास्ते बड़ा निर्माण शब्द दिता गुरु नानक ने, सिख। सिख तो मुराद की मैं सिखना है, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इस तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कोई नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जानना चाहता, सीखना चाहता। और ये भाव मरदे दम तक बनया रहे, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, जानन नूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर गौर नाल देखिए, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी अगम्य सागर मनुख नूं बड़े मुश्किल नाल किधरे 2-4 शब्दां दी जीवन भर दे किधरे समझ आ जाए ते आ जाए। फिर 10वां ग्रंथ है भाई गुरदास जी दियां वारां ने, 52 कवियां दियां रचनावां ने। कवि संतोख सिंह जी का गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ है। इतना वड्डा खजाना है, इति कोई खोले, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया नदाना। नहीं खोलिया, बहुत कुछ है। सियाणे अनुभवी पुरुष कहते हैं, कोई भी मनुख जिस मजहब दे च पैदा होया है, अपने धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत वड्डा पसारा है। तो मैं कहना इस वास्ते सतगुरु ने निर्माण शब्द दे दिता, सिख। तो सीखना है, सीखण का भाव लैके आ, मैं सीखना है। और सीखण लई ते सुनना है, पहले सुनना है, श्रोता बनना है, सुनना है। सुनिए, इस वास्ते सिख तो ज्यादा निर्माण अवस्था होर कोई नहीं, हंकारी सिख हो ही नहीं सकता। जिहड़ा ये दावा करदा मैं सब कुछ जानदा, पता है की है गुरमत मैं जानदा। ये कुछ भी होवे, कम से कम सिख नहीं है। सिख जो मरदे दम तक ये भावना रखे मैं सीखना है और मैं कुछ नहीं जानता। जानन नूं बहुत कुछ है, सीखण नूं बहुत कुछ है। जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस वास्ते चूंकि ये युग कलयुग दे च, किसी युग दे च काम प्रधान होंदा है, किसी दे च लोभ प्रधान होंदा है। इस युग दे च हंकार प्रधान है। साहिब कहते ने हौ मैं रोग मानक को दीना, ये प्रधान है, बड़ा प्रधान है। आहंग मैं हां, दूजा नहीं है। तो हंकारी सिख नहीं हो सकता। भावें सिख दिखाई देंदा, सिख नहीं है। सिख दा ते मतलब है मैं सीखना चाहता, मैनू कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। कम से कम हे प्रभु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। कम से कम हे गुरु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। मैं जानना चाहता, मैं सीखना चाहता। इतना गहरा भाव होवे तो सीख भी लेगा। बड़ा निर्माण शब्द है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, इक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानंत। इस श्लोक का खुलासा करने तो पहले मैं इतना अर्ज कर दिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी प्रचार फेरी कीर्तन दे राही आरंभ की थी। किसी नूं समझाना है गा के, और गाया होया शब्द अगले नूं इतना मुतासिर कर देंदा सी, झुक जांदे सी। किसे किसे नूं विचारना। कीर्तन तो बाद धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, पंजवें गुरु नानक ने सोचा
हर मनुख की कीर्तन तक पहुंच नहीं आती, नहीं आती। ये भी महसूस कर तो कथा की परंपरा चली। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पहले आप कथा करते सन, फिर भाई गुरदास जी ने आरंभ की। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिथे बैठ के कथा करते रहे उन्होंने विवेक सर कहते हैं। विवेक का मतलब ही ज्ञान, ज्ञान देते रहे, कथा करते रहे। अमृतसर दे च एक विवेक सर है 5 सरोवरां दे चों, उत्थे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप कथा करते सन। इस तरह कथा की परंपरा आरंभ हुई। सिख नूं विचारां दे राहें निरंकार नाल जोड़ना, विचारां दे राहें करतार दी सोच बोझ कराने। सिख नूं अपनी विरासत दा, अपने इतिहास दा ते आले दुआले दे इतिहास दा भी बोध होवे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता। पहला ढाडी अब्दुल्ला से मुसलमान से, पहला कीर्तनिया मर्दाना से मुसलमान से। अब्दुल्ला सिख इतिहास नूं जंगी तरज दियां धुनां दे उत्ते वीर रस दे च गा के संगतां दे सामने सुणांदा हुंदा सी। उस तो ये ढाडी सिंह चले। इतिहास नूं कविता दे च बयान करना। 10वें गुरु नानक दा जमाना आया, सिख नूं ਸਾਹਿਤ ਦੀ भी समझ होवे, कला ਦਾ भी बोध होवे। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने नाल 52 कवि रखते सन। जगह जगह कवि सम्मेलन वो करांदे सन। जद भी किसी का हिरदा प्रभु नाल जुड़ जाता है, ਉਹਦੇ अंदर कुछ कोमल कला प्रगट होंदी है। संगीत सब तो कोमल कला है, कविता सब तो कोमल कला है, फिर चित्र कला है, मूर्ति कला है। अवतारां दी पहचान ही कला करके आउंदी सी बई इहदे अंदर कला कितनी है। ये 2 कला अवतार है, 4 कला अवतार है, 8 कला अवतार है, ये 16 कला अवतार, 16 कला श्री कृष्ण दे च मंद है। कोई अंसा अवतार है, अंश मातर है, कोई पूर्ण अवतार है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज कहते हैं, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। वो जिहड़ा ठाकर है परमात्मा है, तू सर्व कला का ज्ञाता, वो सारे कला दा ज्ञानी है। और किसी नूं कला प्राप्त होंदी उस महान कलाकार तो प्राप्त होंदी है, उस नाल जुड़ के प्राप्त होंदी। वो जिंदा कला होंदी है। संगीत जद अंदरों जन्म लैंदा है, वो जिंदा होंदा है। जिहड़ा सिखना होंदा है ਉਹਦੇ ਚ जिंद जान नहीं होंदी। ये भी महसूस करते हैं। कविता जिहड़ी अंदरों जन्म लैंदी है, ਉਹਦੇ जिंद जान होंदी है, बड़ा मुतासिर करती है, बड़ा प्रभावित करती है। राबिंद्रनाथ टैगोर कहते सन, जिस बंदे नूं मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते, फुल नहीं चंगे लगते, संगीत नहीं चंगा लगता, कविता नहीं चंगी लगती, कहता मैं मनदा ही नहीं। उस बंदे कोल दिल होवेगा, कोई पत्थर होवेगा। उस बंदे कोल दिमाग होवेगा, कहता नहीं पत्थर होवेगा। ये मनुख नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। संगीत चंगा ही नहीं लगता, कविता चंगी ही नहीं लगती, फुल चंगे ही नहीं लगते, मासूम बच्चे चंगे ही नहीं लगते। राबिंद्रनाथ टैगोर क्योंकि कवि से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपनी बहुत सारी बाणी दे उत्ते अपने आप नूं कवि करके अगे करते हैं।
कवि ओ बाज बेनती चौक। एक कवि दे बोल धन गुरु नानक इंज कहते ने, नानक शायर एव कहत है सच्चे परवरदिगारा। ये जो नानक कह रहे हैं, नानक शायर कह रहे हैं, शायरी जो रख रहे हैं, उर्दू च कह लो शायरी, हिंदी च कह लो कविता। हुण कवि दो तरह के आउंदे ने। महान कलाकार नाल सुन सुन के सुरत जुड़ गई है, अंदरों कला ने जन्म लिया, कविता ने जन्म ले लिया, संगीत ने जन्म ले लिया। अलोरा अजंता गुफावां दे जो चित्र बनाए गए ने, ये उन्हां जुड़े हुए कलाकारां ने बनाए ने। दुनिया भर तो चित्रकार पहुंचते ने अजंता दे विच। एक तस्वीर दी नकल करो, वो तस्वीर है, तुसी सामने देखो ते मुस्कुरांदी हुई है। इंज खब्बे पासे आ जाओ, बड़ी गंभीर है, बहुत गंभीर है। और सज्जे पासे आ जाओ, समाधि लीन दिखाई देती। तस्वीर इको ही है। इको ही तस्वीर दे तीन रूप दिखाई देंदे ने, पहलू बदलन नाल। दुनिया भर तो आर्टिस्ट उत्थे पहुंचते ने, किवें बनाई गई, भावें 2000 साल बनाई गई, पर अज भी जिंदा है, जिंदगी दे रही है। किसी ऐसे चित्रकार दे अंदरों निकली है जिहदी चित्रकला दे च जान सी, जिंदगी सी, किसी तो सिखिया नहीं सी। परमात्मा नाल जुड़ के कला उसके अंदरों प्रगट हुई सी। बौद्ध भिक्षु सन, उसने बनाई सी। मैं भी जिस दिन देखी हैरान होया, मैं कहा हद हो गई। खब्बे पासे देखदे कुछ होर दिखाई देंदी है, सज्जे पासे देखिए तो कुछ होर, सामने देखिए तो कुछ होर। सारी दुनिया दे चोटी दे चित्रकार उत्थे पहुंचते ने, नकल करते हैं, बैठे होंदे ने, बनांदे पे, सीखण दी कोशिश पे करदे। पर जिसने बनाई है उसने किसे तो नहीं सीखी सी, उहदे अंदरों प्रगट हुई सी, उहदे अंदरों प्रगट हुई सी। तानसेन दा संगीत सुन के एक दिन अकबर कहंदा है, तू इतना मधुर गाउंदा है, साडी सुरत गवा जाती है, लीन हो जाते हैं। तैथों भी कोई चंगा गाउंदा है? तानसेन कहंदा, हाँ। कौन? बिंद्रावन दे झुग्गी च रहिंदा हरदास, स्वामी हरिदास। उत्थों सिखिया सी, उहदे कोलों सिखिया सी। अकबर कहंदा फिर मैं उसनों सुनना। पता है तानसेन ने की आख्या, मैं तेरे दरबार दे आके तैनू सुना सकदा, ओनू सुनना है ते ओदे दरबार च तैनू जाना पे। पर वो रोज नहीं गांदा। जिस दिन उस दे अंदरों संगीत फुटदा है, उस दिन गांदा है, उस दिन गांदा। कहंदे ने उत्थे बहुत सारे साधुआं दियां कुटियां सन। वक़्त दा बादशाह पड़ोसे जाके ठहरे, गुमनाम तरीके नाल तानसेन नाल 3 दिन ते इंतजार किया, सबर दा पैमाना ओ लबरेज होया, औखा होया। बई हद हो गई है, 3 दिन हो गए, और किन्ना सबर करिए। एक दिन अमृत वेले कन्ना च आवाज पई, अकबर उस कुटिया दे कोल चलिया गया।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਤਾਨਸੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਗੇ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾਦ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲ। ਵੇਦ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਇਓ ਨਾ ਲਹੰਦ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਗੇ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਅੱਖਰ ਸਰ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਇਓ ਨਾ ਲਹੰਦ। ਕੁਛ ਅੱਖਰ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕੁਛ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਤ ਕਰਨ। ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਭਾਵਕ ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अगर ये गहरा स्रोता है तो इसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा।
मनुख इस अवस्था तक पहुंच सके, गुरु घर ने 4 तरह की कोशिश की थी। कीर्तन, कथा, ढाडी प्रसंगां दे राहीं इतिहास की जानकारी करा के मनुख दे अंदर जाग लानी, और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवि दरबारां नूं जन्म दिता। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा कई कोट कवि काव्य विचारे, करदे ने तेरे कई विचार, कविता दे राहीं, शायरी दे राहीं। संस्कृत दा लफ्ज है ऋषि, ते ऋषि दे अर्थ ने कवि। ये जिन्ने भगतां दी बाणी ऋषि मुनियां दी बाणी है। ऋषि मुनि इकट्ठा शब्द क्यों कहने आ? जिन्हां दा मन चुप कर गया, मौन कर धारण कर गया ऋषि। हुण इहदे अंदरों कला फुटेगी, कुछ ना कुछ फुटेगा। भावें खड्डी ते बैठ के कपड़े बुनदा है, इस कबीर दे अंदरों संगीत भी निकलेगा, गीत भी निकलेगा। भावें चौक दे च बैठ के रविदास जुतियां गंढदा है, गुस्ताखी माफ क्योंकि स्वयं अपने आप नूं चमार कहंदे ने, तो इस चमार दे अंदरों संगीत भी फुटेगा, गीत भी फुटेगा। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। ठीक कहते ने राबिंद्र नाथ टैगोर, जिन्हों संगीत चंगा नहीं लगता, कविता चंगी नहीं लगती, कहंदा इसनूं मनुख कहण दी लोड़ की है? इहदे कोल दिल नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। इहदे कोल दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। भावें अहले इस्लाम दे संगीत दी ममानियत है, लेकिन मुहम्मद साहब दे अंदरों कुरान दियां आयतां निकलियां ने संगीत दे राग दे निकलियां। जद भी कोई कुरान दी तलावत कर रहा हुंदा है, यकीन जानो संगीत ते टपकदा है। जद कोई मुनारे ते चढ़ के मौलवी बांग देंदा, संगीत ते टपकदा है। अमीर खुसरो इसनूं इंज कहंदा है, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। हे प्रभु, तेरे एक नूर दी झलक मिली सी, वो ते खो गई, और तेरी आवाज मैं सुन रहा। संगीतमयी है, गीतमयी है। तेरी आवाज गीत है, तेरी आवाज संगीत है। लफ्ज उत्थे रूह है, रूह दी आवाज गीत है, संगीत है। हे प्रभु, ये तेरी आवाज है, गीत संगीत। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक ना नाद ना भेद गे रस, रस कस ना जाड़। नाद की समझ ही नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, विस्माद नाद। हे प्रभु, मैं संगीत सुन के विस्मादमई हो जाना। आवाज दे च इतनी लयबद्धता, आवाज दे च इतनी कशिश, इतनी लयबद्धता। आवाज तरतीब दे च हो जाए, संगीत बन जाती है। अखर तरतीब दे च हो जान, कविता बन जाती है, शायरी बन जाती है। कवि नूं ऋषि आख्या गया है। ऋषि कवि है, कवि ऋषि है। अंतरा की है? ऋषि जिहदी जिंदगी दे चानना हो गया, सूरज उदय हो गया, प्रकाश हो गया। कवि जिहदी जिंदगी चानना कदी कदी इस तरह होंदा है जिवें अंधेरे च बिजली चमकदी है। जदों बिजली चमकदी है, उस दे अंदरों भी कुछ गीत जन्म लेंदे हैं, उस दे अंदरों भी कोई राग जन्म लेंदा है। उस वक्त वो ऋषि जैसा होंदा है। जैसे चमकदी है बिजली छुप जाती है, बंद हो जाती है, फिर अंधेरे च। कभी कई दफा आम मनुखा नालों भी थले जीवदा है, ये भी महसूस करते हैं। हो सकता है आम मनुख कुछ नैतिकता रखता होवे, किसी नैतिकता की पालना नहीं करता। समाज के तल ते जिहड़ी नैतिकता है, आम कवि शायर उसकी भी पालना नहीं करता। पता है क्यों? जिस वक्त तो बिजली चमकदी है, रोशनी आउंदी है, बड़ियां बुलंदियां नूं देख लैंदा है।
ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛਲਕ ਝੁੱਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਝਲਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਮੈਨੀ ਦਿਸਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੇਮੈਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਕਿਸੇ ਪਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੀਤ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਟੈਗੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਪਰ 3 ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਸਰੋਤਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ। ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹਉ 3 ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾਇਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ।
ये भी महसूस करते हैं। कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, भरोसे का टुट जाता है। अगर किसी नूं सुन के भरोसा नहीं टुटिया, हो सकता है संसार का कोई गहरा दुख भरोसे नूं तोड़ के रख दे। किस तरह रब नूं मनदा ही नहीं, किस तरह रब हो सकता है, परमात्मा किस तरह हो सकता है? इन्ना दुख। भरोसा तोड़न वास्ते हजारां साधन बार मौजूद ने, भरोसा जोड़न वास्ते केवल सत्संग है और कुछ भी नहीं, केवल गुरु नूं सुनना। भरोसा टुट सकता है, पर बार बार सुनिया होया जो मनिया गया है, मन के जो भरोसा बनया है, ते भरोसा बन के भावना बन गया है, भगती बन गया है। हुण इहदे तन दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकते हैं, भरोसा टुटेगा नहीं। हुण ये उबलदी देग दे च उबल सकता है, इहदा भरोसा नहीं टुटेगा, ये समदृष्ट हो जाएगा। ये जलाद दे च भी परमात्मा नूं देखेगा अगर किसी ने इसके टुकड़े किए, ये उहदे विच भी परमात्मा नूं वेखेगा। जो दी से सो तेरा रूप करके हो जाएगा, समदृष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान समदृष्ट है, भगत समदृष्ट हो जाता है। समदृष्टि पहचान है कि इहदा सुनिया होया मन तो अगे लंघ के, भरोसे तो अगे लंघ के भावना बन गए, भगत है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। भगत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्यों? भगत भगवान जैसा है, भगत परमात्मा जैसा है, भगत ईश्वर जैसा है। समदृष्ट हो जाता है, उहदे लई सब कुछ ईश्वरमई हो जाता है। ये विस संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। तरह तरह के वितकरियां दे जीण वाले मनुख हो सकता है अजे भरोसे च भी नहीं जी रहे, अजे सुनी हुई बाणी मन का हिस्सा नहीं बनी, सरोते भी नहीं है। सुनिए मनिए मन कीता पाप। भावना सुन के जिसदी बन गई है, सुन के जिसदा भरोसा बन गया, खतरे च है। भरोसा टूट भी सकता है, कोई तोड़ के रख देगा। और मैं इस जिंदगी दे अंदाजन 46-47 साल हो गए ने मैनू कथा कर दे, मैं चंगे चंगे बंदे देखे जिन्हां दे भरोसे टूट गए। गुरु तो भरोसे टूट गए, गुरुद्वारे तो भरोसे टूट गए, परमात्मा तो भरोसे टूट गए। कईयां दे ते बहुत छोटी छोटी गल ते भी टूटे। ये पिछले साल की गल, कैलीफोर्निया च एक सज्जन ने अखंड पाठ रखाया। और 3 दिन गुरुद्वारे बड़ी रौनक। 2 हाल सन, एक दे पाठ चलता रहा, एक दे कथा कीर्तन चलता रहा, 24 घंटे लंगर चलता रहा। गुरुद्वारे दे जो कुछ चाहिए सी उसने पहुंचाया और बहुत कुछ नवा बना दिता। उन्हें अथाह उत्थे दान किया, बड़ी उसकी महिमा भी हुई। 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों तो विचरदा होया जद फ्रीमाउंट पहुंचे, सुते सिद्ध उत्थे उसका मिलना हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक महीना हो गया सी। 10 लॉस एंजलिस होर कई शहरों तो होके उत्थे पहुंचे। मैनू कहने लगा अपना ते हुण यकीन नहीं रह गया, गल खत्म। मैं कहा हद हो गई। $1000 उस दिन आके खर्च कीते न तुसी, भांडे नवे बनाए, कारपेट नवा तुसी बिछा दिता, इतनी रौनक, पाठियां नूं तुसी खुली माया दिते, लंगर तुसी वो चलाए जो ब्याह शादियां दा सिलसिला नहीं बनता। गल की हो गई? कह लगे मस्कीन जी आपां मुकदमे च हार गए,
साडा निश्चा टुट गया, भरोसा ही टुट गया। इन्नी जिहियां गल्लां, इन्नी जिहियां गल्लां। जिसदा भरोसा वजिया है खतरे च है, कोई तोड़ के रख सकता है। कोई दुख भरोसे नूं तोड़ के रख दे, कोई लेक्चरार, कोई कथाकार उस तो विपरीत गल कह के परमात्मा के भरोसे नूं तोड़ के रख सकता है, गुरु के भरोसे नूं तोड़ के रख सकता है। और भरोसे टुटदे मैं देखे, ये भी मैं अर्ज करती। वो अपने आप को खतरे च समझे। जिन्ने चिर तक भरोसा भावना नहीं बनता, भक्ति नहीं बनता, भगत का भरोसा नहीं टुटता। भगत ते भगवान का रूप हो जाता है, बूंद सागर हो जाती है। हुण जो है उसका भरोसा टुटे, उते आप परमात्मा वर्गा हो गया। हर वक्त महारस महानंद उसकी दुनिया च। वो गीत का रूप हो गया, संगीत का रूप हो गया, आनंद का रूप हो गया, ज्ञान का रूप हो गया और समदृष्ट हो गया। हुण जिथे तक वो वेखदा है परमात्मा नूं वेखदा है, और जिथे तक सुनदा है जो बोलत है मृगमेन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो। हे प्रभु जितने पंछी पे बोल देन सब तेरी आवाज। हुण ते मैनूं इंज लगदा है ये भी तैनूं ही जपदे पे ने, और कुछ नहीं। ये सारियां आवाजां हे प्रभु इहदे च भी तू है, ये सारे रूप इहदे च भी तू है। ये अवस्था बने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो बोलत है मृगमेन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी मैं समदृष्टि थोड़े सामने रखा तो समाप्ति करना समा हो गया। महाराज कहते कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेतो। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं अकाल उस्ताद। हे प्रभु किधरे ते तू बड़ा सावधान सुचेत है, बड़ा सियाणा है। कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, तू अपनी चेतना नूं चार कहंदे ने बड़े सुंदर, बड़े सोहणे सोहणे गुणां नाल संवारिया शिंगारिया। कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेतो, किधरे तू बिल्कुल मूड अचेत, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। हैरानगी, हैरानगी। कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत वेक, कहूं महादान होए के मांगेओ धन दे तो। हे प्रभु कमाल दी गल, किधरे तो मंगता बनया है भिखारी, हथ फैलाया टुकड़ा टुकड़ा मंगदा भी। एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास, हे चोजी पातशाह किधरे तू दाता बनया, किधरे भिखारी है, सब तेरे ही चोज ने। समदृष्टि। कतहूं भिखारी होए के मांगत फेरत भीख, कहूं महादान होए के मांगे धन देत हो। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूं वेद रीत, कहूं तांसम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। इन्हां सैकड़े सवैयां दे चों दो चार मैं तुहाडे सामने रखां। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, क्योंकि 10वें पातशाह नूं बहुत घट समझिया गया, बहुत घट पढ़िया गया, बहुत घट सुनिया गया। इस वास्ते मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। सिंगापुर विच एक सज्जन सिंधी मैनूं कहण लगा, गुरु नानक बड़े मीठे गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं, हमारा तालमेल नहीं बैठता। सीधे लफ्ज़। फिर मैं उन्होंने सुभावक कह दिता, जे इतने कड़वे ना होंदे ते भारत विच हिंदू धर्म ते रहना ही नहीं सी, खत्म हो जाना सी। कवि संतोख सिंह जी कहंदे ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते,
रीत मित्र जाति कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु ग्रंथ गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पे करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना आउंदी, गीता पुराण वेद खत्म हो जाने सन, केवल कुरान रहनी सी। जनेऊ तिलक मंदिर ठाकर द्वारे खत्म हो जाने सन, एक कोई मस्जिद रहनी सी। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी की करामात, उन्हां दी मेहरबानी, उन्हां दी कुर्बानी, उन्हां दी तपस्या, उन्हां दी देन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि नहीं देखा गया, क्योंकि असी सुनाया नहीं, असी समझाया नहीं। साहिब कहने कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्या दल, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। हे प्रभु, किधरे तू महाकवि है, किधरे तू महासंगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार। वही गल जो गुरु नानक कहने गुरु गोबिंद सिंह। पर हे प्रभु, किधरे तू भूत प्रेत है, पिशाच है, शरीर ही तेरे कोल नहीं, रूह भटकदी पई। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। कहूं होए के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूं होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु, किधरे तू हिंदू है, तू ही है, और कोई नहीं, तू ही है। गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, पर हे प्रभु, किधरे तू मुल्ला है, तुरक है, मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देना। गुफा विच बैठ के मंत्रां दा जप करन वाले हे प्रभु तू ही है, मुनारे ते चढ़ के बांग देण वाले हे प्रभु तू ही है। कहूं को बकाब होए पुराण को, पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान, लेत हो कहूं वेद रीत, कहूं तांसों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। हे प्रभु, मैं देखदा किधरे तू पुराणा दा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञाता है, पर किधरे तू कुरान दा हाफिज है, तू ही है, और कुछ नहीं, तू ही है। इन्हां सवैयां दी लड़ीवार जे मैं व्याख्या की, समा अपने ढंग नाल चला जांदा है। एक सवैया होर रखते हैं थोड़े सामने कवित। कहूं गीत के गवैया, द्वापुर दे चली गई बिरती धन गुरु गोबिंद सिंह जी। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया। हे प्रभु, किधरे तू मधुर गीत गाना है ते मुरली बजाना, बांसुरी बजाना, धन गुरु गोबिंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार हो। किधरे आकार तेरा पुरुष दा बड़ा सोना नृत्यकार है, बांसुरी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कहूं वेद बानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार हो। पर हे प्रभु, किधरे तू नारी दी तरह, नर दी तरह नहीं है, स्त्री दी तरह, पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे वेद बाणी, विद्या नाल भरी हुई, ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दियां कहानियां तो कर रहे हैं, पर किधरे कोक की कहानी। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, कोका पंडित ने कामसूत्र एक ग्रंथ लिखे। उस वक्त दे कुछ नैतिक पुरुषां ने, सियाणे पुरुषां ने कहा सी, ये तू की लिख रहे हैं, तू ऋषि है, तू संत है, काम ते लिख रहे हैं। उन्हें आख्या, जे क्रोध ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, हंकार ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, लोभ ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, मोह ते लिखिया भी जा सकता है ते बोलिया जा सकता है, काम ते क्यों नहीं लिखिया जा सकता ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता। ये उहदी दलील सी। आखिर जद भी किधरे मनुख गिरदा है तो ना पंजा करके ही गिरदा है, और जिस करके ज्यादा गिरदा है, अधिक गिरदा है, उहदी जानकारी मनुख नूं होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्हें इतना वड्डा ग्रंथ लिखिया कामसूत्र। हुण आप सुन के हैरान हो गए, उसके जिहड़े कुछ पहलू दसम ग्रंथ दे विच मिलदे ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं 24 अवतारां दी जो मैं कथा लिखी है,
मैं अनुवाद कीता है, टीका कीता है, ये मेरे अपने ख्याल नहीं। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाहे। मेरी कोई वासना नहीं, बस मैं ते धर्म दा युद्ध करन वाला, प्रभु नाल जुड़न ते जोड़न वाला। पर मैं प्राचीन धर्म ग्रंथां दा ये टीका कीता है, अनुवाद कीता है, ताकि मेरे खालसे नूं, जगत नूं पुराने धर्म दा, पुराने समाज दा, पुराने लोकाचार दा पता होवे, ज्ञान होवे। सहन सरदान दे इंद्र रोवाया, परसराम रोवे घर आया। एक शब्द है गुरु नानक देव जी में। ये परसराम कौन सी, इंद्र कौन सी, ये जनमेजा कौन सी? अजय सरोवे बिखया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए। ये सारे कौन सन? ये ते पुराण पढ़ने पैणगे, पुराणक प्रसंग पढ़ने पैणगे, जानना पेगा। बहुत कच्चे दिल दिमाग दे बंदे सिख जगत विच अपने आप नूं रहबर मनन लग पए ने, ओहदे नाल सिख धर्म संकीर्ण हो के रह गए, जबकि इस तो वड्डा होर कोई विशाल धर्म नहीं सी। ਇਹਦਾ सबूत धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सारे भगत ते बैठे हैं, बांग देण वाला भी बैठा है ते मुरली दी तान छेड़न वाला भी बैठा है, सब कुछ मौजूद है। खैर मैं लमकावा ना, सतगुरु कहंदे ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं टीका कीता, अनुवाद कीता। क्यों? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, शूदर नूं नहीं। ते ब्राह्मण जिहड़ी विद्या पढ़ांदा सी, संस्कृत सी, बड़ी बेखम। वो हुण लोक भाषा नहीं रह गई सी, किसे वक्त सी, किसे वक्त सारी संस्कृत बोलदे सन। समां दे नाल भाषावां बदलदियां, अज पंजाबी दा रूप भी नहीं रह गया। पंजाबी दे बहुत सारे अल्फाज होर दे होर आ गए, ये भी मैं अर्ज करदी। लਹਿੰਦੀ पंजाबी, चढ़दी पंजाबी अलग अलग है। पाकिस्तान दे विच पंजाबी बोलदे ने, साडी पंजाबी नालों भिन्न हो गई है, बिल्कुल भिन्न हो गई। मैनूं चंगी तरह याद है, श्रोमणी कमेटी ने एक दफा दास दी सेवा लाई ननकाणा साहब, गुरु नानक देव जी महाराज दे गुरपुरब ते। भी उत्थों दी मंग आई है, टीवी ते प्रोग्राम जाना है, पर उर्दू दे कथा करनी है, लैक्चर देने भी तुसीं तिन्ने दिन गुरुद्वारे च उर्दू च बोलना। ठीक है। और उस सेवा मैं खुशी नाल कबूल की। मैं कहा बड़े दिनों बाद सतगुरु दे उस पावन स्थान दे दर्शन नसीब होणगे। बड़ा भारी इकट्ठ, राय बुलार दी जिहड़ी संतान भट्टी खानदान, वो भी सारे बैठे सन। रात नूं भी दास हाजरी भरदा हुंदा सी। वो जिहड़ी भट्टी खानदान है, राय बुलार दी, होर सारे वो कहण लगे रात नूं तुसीं पंजाबी च ही बोले। चंगा, रात नूं मैं पंजाबी च बोलिया। मेरे कमरे चों मुसलमान वीर आ गया भी असीं ते तुहानूं हथ जोड़ के आखिया सी, अरज़ोई कीती सी पंजाबी च बोलो, तुसीं पंजाबी च नहीं बोले। मैं कहता मैं पंजाबी च बोलिया। कहंदे इह किहड़ी पंजाबी है? हुण ओह लਹਿੰਦੀ पंजाबी बोलदे, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਇਆ 50-51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਖੜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਕੋਕਾ ਪੰਡਤ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
जे लोभ दे उत्ते व्याख्या की जा सकती है तो साहिब कहते ने लोभ ते मनुख नूं कूकर जैसा बना देंदा, कुत्ते जैसा बना देंदा। ज्यों कूकर हर काया तावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पाखा बक सब खाए। भयो लोभ संग होरा, लोभ मनुख नूं हलकाया कुत्ता बना देंदा है। हलका कुत्ता अपने मालक नूं भी वड्डण लग पैंदा है, पागल कुत्ता। लोभ ते पागल करके रख देंदा है। सीमा तो वधिया होया लोभ, मनुख किसी नूं भी धोखा दे सकदा है। सीमा तो वधिया होया हंकार मनुख नूं जालम बना के रख देंदा है। और सीमा तो वधिया होया काम मनुख नूं भ्रष्ट करके दुराचारी बना देंदा है। अगर पुरुष है तो व्यभिचारी हो जाएगा, अगर स्त्री है तो गनका हो जाएगी, वैश्या हो जाएगी। गुस्ताखी मां इसका खुलासा किया, इसकी व्याख्या की है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्ताद विच फरमान करते हैं, हे प्रभु कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत के नचैया, कहूं नर को आकारो, कहूं वेद बानी। किधरे ते तू वेदां दा पाठ पिया करदा है, ज्ञान दे धर्म ग्रंथ पिया पढ़दा है। कहूं कोक की कहानी, किधरे कोक शास्त्र पिया पढ़दा, काम सूत्र पिया पढ़दा, काम सूत्र दी विचार चल रही है। किधरे राम दे गीत ते किधरे काम दे गीत, पर तू ही है हे प्रभु तू। कहूं वेद बानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा, कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार हो, कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया। किधरे गौवां पे आचारदा है, श्री कृष्ण दी तरफ इशारा। द्वापर दे सतगुरां दी सुरत चली गई। कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया, कहूं लाखन लवैया, कहूं सुंदर कुमार हो। शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार हो। हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप, इतने रूप। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੋਇ ਤੇਜੇ। हे ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ। ਇਤਨੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। जद भी किसी का सुनिया होया भरोसा बनता है तो भरोसा भावना बन जाता है, भक्ति बन जाता है, वो समदृष्ट हो जाता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, समदृष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी उदी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट, ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट, वो वास्तविक समदृष्ट हो जाता है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ ਫਕੀਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो, मंदिर सी कि मस्जिद सी, तेरे गीत हो रहे सन, तेरी गल हो रही सी, मेरा सिर झुक गया, मैं मत्था टेक दिता, मैं सजदा कर दिता। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की शिखरता नूं छूंदी है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने अक्सर भरोसा डोल जाता है। इस वास्ते अरदास है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। अवल ते कोई विरला ही सुनदा है, श्रोता सुनना ते सुनिया होया अगर वाकई मन ने मन लिया, सुनिए मनीए, नहीं तो की सुनिया, मनिया ही नहीं तो की सुनिया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, खादा होया भोजन जो शरीर दे विच रह जांदा है उही खून बनदा है। सुनिया होया गुरु दा वचन जो मन मन लैंदा है उही मन दा हिस्सा बनदा है, वरना नहीं बनदा, नहीं बनदा। वो भरोसा बन जाता है, विश्वास बन जाता है। पर मनुख खतरे च होवेगा, भरोसा डोल सकता है, विश्वास डोल सकता है। सुनदा रहा, मनदा रहा,
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਖਰੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, 10 ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮੰਨਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲਾਓ। ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਲ ਦੇ। ਮਾਗ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।